Dear students, welcome to my English literature class of grade 5th. Today in this video we will revise chapter number 9 Around the World in 80 Days. Students, in the last video we have revised about the poem Laughing Song. So today we will revise question answers, extract as well as word meaning of this chapter. Let's begin with the question answers. Come to this assignment. Question number 1. What was the bet and where was the bet made? Bet क्या है और ये कहाँ पे बना? The bet was that Phileas Fogg would have to travel around the world in 80 days for a grand amount of £20,000. The bet was made at the Reform Club. जो मिस्टर फॉग था वो ट्रैवल करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में विद इन 80 डेज़ के विद इन वो ट्रैवल करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में विद द ग्रैंड अमाउंट ऑफ £20,000. और जो बेट था वो क्या था, कहाँ पे बना था? द बेट वॉज मेड एट रिफॉर्म क्लब में. सो वाई डिड पासेपर्टोट लुक पजल्ड? पासेपर्टोट क्यों पजल था? स्टूडेंट्स, हु इज़ पासेपर्टोट? पासेपर्टोट जो मिस्टर फॉग है, फिलियस फॉग है, उसका वो सर्वेंट था, मेल सर्वेंट. उसका नेम क्या था उसके सर्वेंट का? पासेपर्टोट. और वो पजल क्यों हो गया था? पासेपर्टोट लुक पजल्ड बिकॉज हिज मास्टर टोल्ड हिम दैट दे वर स्टार्टिंग फॉर डॉवर एंड कैलियास इन 10 मिनट्स. पासेपर्टोट पजल्ड इसीलिए था क्योंकि उसका जो मास्टर था, मास्टर कौन था? मिस्टर फॉग, मीन्स फिलियस फॉग. जो मिस्टर फॉग था वो उसका मास्टर था और उसने उसको बोला था कि हमने जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी है विद इन 10 मिनट्स. कहाँ पे स्टार्ट करनी है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करनी है? डॉवर एंड कैलियास. What did the Mr. Fogg ask Passepartout to pack for journey? Mr. Fogg asked Passepartout to pack a carpet bag for the journey with 2 shirts and 3 pairs of stockings for him and the same for Passepartout. जो मिस्टर फॉग है उसने पासेपर्टोट को, अपने सर्वेंट को क्या बोला? जर्नी के लिए पैक करने के लिए कौन सी चीज़ें बोली? मिस्टर फॉग ने बोला कि एक तो कारपेट बैग पैक करना है जर्नी के लिए, एक 2 शर्ट्स, 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स एंड सेम फॉर पासेपर्टोट. उसने 3 चीज़ें उसको बोली, एक तो कारपेट बैग, 2 शर्ट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग, अपने लिए भी और उसके लिए भी. How would the friends be able to judge if Mr. Fogg had completed his journey? The friends would be able to judge if Mr. Fogg had completed his journey by examining his passport. तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कैसे जज कर सकेंगे कि जो मिस्टर फॉग है उसने जर्नी जो है वो कंप्लीट की है? The friends would be able to judge if Mr. Fogg had completed his journey by examining his passport. उसके पासपोर्ट को, जो पासपोर्ट है उसको एग्जामिन करके, उसको देख के वो एनालाइज कर लेंगे कि उसने जो जर्नी है वो कंप्लीट की है विद इन 80 days. When were the two due to back in London after their journey? When were the two due to be back in London after their journey? The two were due to be back in London from their journey in 80 days on Saturday, the 21st of December 1872 at a quarter before 9 p.m. When were the two due to be back in London after their journey? The two were due to be back in London from their journey in 80 days on Saturday, the 21st of December 1872 at a quarter before 9 p.m. जो दोनों थे वो बैक कब आए थे लंदन से?
अपनी जर्नी से 80 डेज़ की जो उनकी जर्नी थी वो लंदन वापस कब आए थे? सैटरडे को 21 दिसंबर 1872। 21 दिसंबर के डे कौन सा ईयर? 1872 को वो वापस आए थे सैटरडे को लंदन एट अ क्वार्टर बिफोर 9 PM। 9 PM से पहले। Now come to the last question. Why was the passepartout clinging to the carpet bag in train? Passepartout was clinging to the carpet bag in the train because of the amount of 1000 pound in it. जो पासेपाटॉट था, जो उसका मिस्टर फॉग का सर्वेंट था, उसने क्यों कारपेट को होल्ड किया हुआ था टाइटली? क्लिंगिंग मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली। उसने क्यों किया हुआ था? क्योंकि उसमें 20,000 पाउंड की अमाउंट थी, मनी थे उसमें। पासेपाटॉट वॉज क्लिंगिंग टू द carpet bag in the train because of the amount of 20,000 pound in it. Students, now come to the extract. Come to the first extract. Oh, that would be quite unnecessary, Mr. Fogg. किसने बोला था ये? Who said these words? Mr. Fogg's friend Ralph said these words. What would be unnecessary? Examining Mr. Fogg's passport would be unnecessary. क्या unnecessary था? मिस्टर फॉग का जो पासपोर्ट है उसको एग्जामिन करना, उसको देखना, वो क्या था? एनालाइज करना क्या था? अननेसेसरी था। वाई वुड इट बी अननेसेसरी? क्यों अननेसेसरी था? एग्जामिनिंग मिस्टर फॉग्स पासपोर्ट वुड बी अननेसेसरी बिकॉज हिज फ्रेंड्स वुड ट्रस्ट हिज वर्ड एज अ जेंटलमैन ऑफ ऑनर। क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो मिस्टर फॉग पे ट्रस्ट करते थे, जैसे कोई जेंटलमैन है ऑफ ऑनर, जैसे कोई जेंटलमैन है, कोई काइंड जेंटलमैन है। जो पासेपाटॉट था, जो उसका मिस्टर फॉग का सर्वेंट था, उसने क्यों कारपेट को होल्ड किया हुआ था टाइटली? क्लिंगिंग मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली। उसने क्यों किया हुआ था? क्योंकि उसमें 20,000 पाउंड की अमाउंट थी, मनी थे उसमें। पासेपाटॉट वॉज क्लिंगिंग टू द carpet bag in the train because of the amount of 20,000 pound in it. Students, now come to the extract. Come to the first extract. Oh, that would be quite unnecessary, Mr. Fogg. किसने बोला था ये? Who said these words? Mr. Fogg's friend Ralph said these words. What would be unnecessary? Examining Mr. Fogg's passport would be अननेसेसरी। क्या अननेसेसरी था? मिस्टर फॉग का जो पासपोर्ट है उसको एग्जामिन करना, उसको देखना, वो क्या था? एनालाइज करना क्या था? अननेसेसरी था। वाई वुड इट बी अननेसेसरी? क्यों अननेसेसरी था? एग्जामिनिंग मिस्टर फॉग्स पासपोर्ट वुड बी अननेसेसरी बिकॉज हिज फ्रेंड्स वुड ट्रस्ट हिज वर्ड एज अ जेंटलमैन ऑफ ऑनर। क्योंकि उस वाई वुड इट बी अननेसेसरी? एग्जामिनिंग मिस्टर फॉग्स पासपोर्ट वुड बी अननेसेसरी because his friends would trust his word as a gentleman of honor. क्यों अननेसेसरी था? क्योंकि जो मिस्टर फॉग है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उस पर ट्रस्ट करते थे, तो इसीलिए वो अननेसेसरी था। वो उस जो मिस्टर फॉग था उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे और वो उसके जो फ्रेंड्स थे उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। दे आर गिविंग high amount of respect to Mr. Frog. So that's why उसका जो पासपोर्ट था, क्योंकि उनको उसके ऊपर ट्रस्ट था, उनको देखने की ज़रूरत नहीं थी कि जो मिस्टर फॉग है उसने 80 डेज़ में जर्नी कंप्लीट की है या नहीं की गई, तो वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उनको ट्रस्ट था। ऑनर मीन प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। Now come to the second extract. Oh, in my hurry, I forgot. क्या forgot कर गए थे वो हरी में? Who said these words and to whom? किसने बोले थे और क्या भूल गए थे वो?
पासेपाटॉट सेड दिस वर्ड्स टू मिस्टर फॉग, पासेपाटॉट ने मिस्टर फॉग को ये वर्ड्स बोले. व्हाट डिड द स्पीकर फॉरगॉट, क्या भूल गया था जो स्पीकर था? पासेपाटॉट फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द गैस इन हिज रूम. जो उसका सर्वेंट था पासेपाटॉट, वो क्या भूल गया था? गैस को ऑफ करना, स्विच ऑफ करना. व्हाट वाज द लिसनर्स रिएक्शन, यहाँ पे लिसनर कौन हो गया? मिस्टर फॉग. तो उसका क्या रिएक्शन था जब उसके सर्वेंट ने उसको ये चीज़ बोली कि मैं जो गैस है उसको स्विच ऑफ करना भूल गया. तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द लिसनर्स? मिस्टर फॉग coolly said that the gas will burn at Passepartout's expense. तो जो मिस्टर फॉग है उसने बोला कि जो गैस है वो बर्न हो जाएगी, जो उसका पासेपाटॉट, जो उसका मेल सर्वेंट है, उसके ही खर्चे से. So students, this is all about the question answers as well as extract. Now come to the word meanings. Butler, butler क्या होता है? मेल सर्वेंट इन अ हाउस. मेल सर्वेंट को क्या बोलते हैं? बटलर. ग्रिन, स्माइल, शोइंग टीथ. मॉन्सियर, टाइटल फॉर अ मैन इन फ्रेंच. क्लैप्स, फॉल सडनली. एस्टोनिशमेंट, ग्रेट सरप्राइज. गैस्प्ड, ब्रीथ्ड सडनली इन सरप्राइज. ग्लिडर्ड, मूव्ड सडनली. ग्लिडर्ड, मूव्ड सडनली. एनॉर्मस, वैल्यूएबल मीन्स बहुत ज़्यादा. इनॉर्मस क्या होता है? वैल्यूएबल, समथिंग वैल्यूएबल, या फिर उसको भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा. सो आई विल रिपीट दिस वर्ड मीनिंग्स अगेन, रिवाइज इट केयरफुली. बटलर, मेल सर्वेंट इन अ हाउस. ग्रिन, स्माइल, शोइंग टीथ. मॉन्सियर, टाइटल फॉर अ मैन इन फ्रेंच. वो वाला जो मैन है उसको जब किसी मैन को हम फ्रेंच में टाइटल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉनिसियर. क्लैप्स, फॉल सडनली. एस्टोनिशमेंट, ग्रेट सरप्राइज. गैस्प्ड, ब्रीथ्ड सडनली इन सरप्राइज. ग्लिडर्ड, मूव्ड सडनली. एनॉर्मस, वैल्यूएबल. So students, this is all about the question answers, extracts as well as word meaning of this chapter. In the next video, we will revise another concept for your December unit test. I hope all of you have understood. So revise it carefully. Thank you. Have a nice day.